Hello everyone, welcome back to my channel once again. So in this video we are solving remaining questions from CTET paper 1 2018. Let's see the remaining questions. I hope you already watched two videos I have made, part 1 and part 2 for the CTET paper 1. So let's start. Which one of the following is an emotion? Options are there: memory, fear, attention, stimulus. If you look at the options, you can see only one word is there, that is the fear, which is emotion, which shows emotion. Remaining are the skills: memory, attention, stimulus. So answer is fear. Second question: a 3-year-old child explained that milk is produced by a machine at the milk booth. Which one of the following offers the best explanation of the child's understanding? First, the child has very limited exposure to the world. Second, the child's answer is based on his or her experience of buying milk from the milk booth. Third, the child has never seen cows. Fourth, the child's family does not offer a stimulating environment to the child. Okay, so according to Piaget's theory, he said that child selects and interprets environmental information in the construction, yes, in the construction of his or her own experience. ठीक है, अकॉर्डिंग टू पियाजेट थ्योरी हमें पता है कि बच्चा जो देखता है, एक्सपीरियंस करता है, उसी से वो रिलेट करता है. यहाँ पे अगर बच्चा बोल रहा है कि हमें मिल्क मशीन से, लाइक दुकान से मिलता है, ओके, सो इट इज शोइंग दैट हम जैसे ग्रोसरीज लेके आते हैं दुकान से, सो ही बच्चे को ऐसे लग रहा है कि मिल्क भी दुकान में ही बनता है. सो if you explain him about the animals, like cows are there to give milk, buffaloes are there to give milk, so ये information उसके experience में जो भी उसने बनाया है स्कीमा, राइट, तो उसमें एड ऑन हो जाएगा. सो वी नो अबाउट assimilation and accommodation, राइट. सो यहाँ पे अगर आपने वो इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर दी तो उस बच्चे का जो भी वो बोल रहा है कि दूध मशीन से ही मिलेगा, शॉप से ही मिलेगा, वो वाला इंफॉर्मेशन और ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, राइट. सो आंसर आएगा सेकेंड वन. द चाइल्ड्स आंसर इज बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ. थर्ड क्वेश्चन: which one of the following best describes a teacher's role? First one, teacher's most important role in the classroom is to maintain discipline. Yes, correct है. A teacher should adhere to the prescribed textbook. ठीक है, ये भी ठीक है. Completing the syllabus on time, leaving enough time for revision is important. ये भी ठीक ही है. Now last option. Creating a relaxed space where children learn through dialogue and inquiry. Okay, what is the exact role of teacher? है ना, मतलब क्लासरूम में टीचर का, मतलब ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, नियर करेक्ट, बट व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस? सो ऑप्शन आएगा फोर्थ. वाई? बिकॉज अगर आप पढ़ा रहे हो और बच्चा कुछ पूछ ही नहीं रहा है, सो व्हाट इज द यूज ऑफ इट? इट शुड बी अ, इट इज लाइक अ वन वे रिस्पॉन्स रहेगा, राइट. सो मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि बच्चों को कितना समझा है. So the fourth one is the best one because it is creating a relaxed space. मतलब टीचर ऐसा स्पेस क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चे रिलैक्स फ्री हो के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं उनके डाउट्स के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन: which one of the following classrooms encourage rich learning? Options है: a classroom with a variety of the material displayed in the class beyond the reach of children so that the material lasts longer. ठीक है, मतलब ये ऑप्शन का मीनिंग है कि जो भी क्लासरूम में मटेरियल्स है वो बहुत दूर है, मतलब वो अच्छे रहेंगे, लाइक बच्चे उसको खराब नहीं करेंगे. सो आप जो भी मटेरियल है, जो भी वॉल पे डिस्प्ले किया है, वो बहुत दूर है, सो दे कैन नॉट रीच. ठीक है. सेकेंड है अ क्लासरूम विथ ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स एंड अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन ओपन शेल्फ्स एक्सेसिबल एट एनी टाइम ऑफ द डे. मतलब ऐसे कॉर्नर बनाया है क्लासरूम में, वहाँ पे हर तरह की बुक्स है, हर तरह की वैरायटी के
बुक्स है, लिटरेचर है, जो भी है एक्टिविटी कर पाएंगे, वैसे सब मटेरियल है जो भी एक्सेसिबल है बच्चों को, मतलब बच्चे खुद से ले सकते हैं एनी टाइम. Now third one, a classroom with neatly organized material in cupboards brought out once a week for free play. मतलब क्लासरूम में नीटली ऑर्गेनाइज है लेकिन वो कबर्ड्स में है और वो हफ्ते में एक बार ही फ्री टाइम पे मिलेंगे. Now last one, a classroom with structured and planned learning driven by textbook content. मतलब जो टेक्स्ट बुक में है वही है. सो एनकरेज रिच लर्निंग कैसे होगी? अगर बच्चा खुद से जो भी उसको करना है करेगा, तभी तो वो एनकरेजेस होगा ना. मतलब आप उसको एनकरेज कर रहे हो, ना कि आप कबर्ड में बंद करके रखा है, आपने बोला कि नो वी हैव अ रूल, हमें हफ्ते में एक ही बार करना है, हफ्ते में एक ही बार एक्टिविटी करनी है. सो इट विल बी लाइक आप जो उनके स्किल्स है ना उनको ना आप लॉक कर रहे हो. ओके, सो ऑप्शन क्या आएगा? सेकंड, अ क्लासरूम विथ ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स एंड वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन ओपन शेल्व्स which should be all the time open and which can be accessible at any time of the day. So यहाँ से ही encouraging होगा rich learning में. ठीक है. So next question है, which one of the following best describes the role of textbook in the classroom? मतलब textbook का महत्व क्या है, importance क्या है ना? So there are one of the resources and reference materials available in the class. Yes, they maintain homogeneity in learning across a state or the nation. Okay, they provide guidance to the teachers and parents about the course of study. Yes, this is also correct. They form the most essential learning resource in a resource staffed context. So यहाँ पे हमें रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम देखना है. सो दे आर द वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास. ठीक है, हम टेक्स्ट बुक्स में से देख के पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं फॉर टीचर, फॉर पेरेंट्स, है ना. सो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा. The National Curriculum Framework 2005 derives its understanding from constructivism. ये आपको याद रखना है. Okay, I will explain about this in another video. So constructivism ही याद रखना है. ह्यूमनिज्म नहीं आएगा, बिहेवियरिज्म नहीं आएगा. बिहेवियरिज्म के ऊपर थेरीज है, लेकिन हमें क्या बोल रहे हैं? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. ओके, तो वो तो इस पे कंस्ट्रक्टिविज्म के अंडरस्टैंडिंग पे डिराइव्ड है. कॉग्निटिव थेरीज भी है, पता है. सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आंसर रहेगा. द चिल्ड्रन इन अ क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ. बच्चे कब मोटिवेटेड रहेंगे? क्लास में. दे कम टू स्कूल नीटली ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म. सही है. देन दे मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम. यस. ऑल आर रेगुलर इन अटेंडेंस. ये भी सही है. दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर. यस. मतलब अभी समझो कि बच्चे, ये तो तीन ऑप्शन जो 1 2 3 ऑप्शन है, वो तो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा रोज आ रहा है, नीटली ड्रेस्ड अप है, डिसिप्लिन में है, बट ही इज नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स. ओके, तो वो मोटिवेट नहीं रहेगा, ही जस्ट कमिंग एंड गोइंग. तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसको आना ही नहीं, मतलब उसका मन ही नहीं करेगा. लाइक व्हाट इज द यूज ऑफ आई एम गोइंग टू द स्कूल, लाइक ऐसा उसके दिमाग में क्वेश्चंस आते रहेंगे. जब वो पूछेगा क्वेश्चंस टीचर्स को, तो उसको वो मोटिवेट करेगा कि मैंने ये क्वेश्चन कल पूछा था तो उसका आंसर ये था. नाउ आई विल आस्क वन मोर क्वेश्चन टू द टीचर. So in this way they will get motivated. So answer रहेगा fourth one. Which one of the following is the most suitable to improve children's learning? First one, regular assessment tests should be conducted. Teachers should explain content using different examples and illustrations. All types of learning material should be there in the class. Teachers should facilitate children to interact with each other on real situation. Yes. Okay, most suitable तो last one है. Remaining options are also correct, but most suitable. Why? Because the word real life situation. आप उनको रियल लाइफ सिचुएशन दे के अगर आप पढ़ाओगे, so it will improve children's learning because it will be means वो मेमोराइज करेंगे for longer time. ठीक है. So option 4 आंसर है. The discipline which has a significant role in a learning environment is of the kind which helps children to regulate and monitor their own learning, to create silence,
टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शंस, चिल्ड्रन रोट मेमोराइज देयर लेसन्स। डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस क्या है? सो बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, यस, एंड टू क्रिएट साइलेंस। साइलेंस तो होंगे, मतलब साइलेंट तो रहेंगे बच्चे, बट फॉर हाउ मच टाइम, है ना। और टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शंस, वो भी तो टीचर्स हमेशा देते रहते हैं, बट when they know the importance of discipline they regulate themselves. Okay, so answer आएगा first one. Patterns of divergent thinking identify children who are disabled, dyslexic, creative, resilient. First of all यहाँ पे आंसर आएगा creative, because they have given the word divergent thinking. Divergent thinking सिर्फ creative बच्चे दिखा सकते हैं, ठीक है। जो रिमेनिंग है डिसेबल्ड, डिसलेक्टिक, रेजिलेंट, वो बच्चे डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं दिखा पाते, ठीक है। सो इस तरह से हमने सीटेट पेपर 1 कंप्लीट किया है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। सो आई एम मेकिंग वन मोर वीडियो ऑन रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ EVS and maths also. Thank you for watching.